So yes, everyone. Today we'll be studying about linear differential equation of higher order. What do we mean by higher order? When the derivative or differential operator is of like order more than one. This is the order one. This is order two. D2 y by dx square. Second order. This is third order. So हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. This is of higher order. This d2 y by dx square plus this and this. So यहाँ पे इसके बारे में तो हम लोगों ने पिछला क्लास में पढ़ लिया about dy by dx. We talked about the ordinary differential equation and the linear form of the ordinary differential equation of first order. Now in this class we will be studying about the linear differential equation of higher order. So how do we denote it? कैसे denote करते हैं? That's one. So or write write the differential equation of higher order linear in nature like this: dn by general form dxn plus p1 dn minus 1 y dx to the power n minus 1 plus p2 dn minus 2 y by dx to the power n minus 2. ऐसे करते करते हम लोग चले जाएंगे. We'll have pn of y is equal to, we'll have x, another function x. This one. So this is the general form. This is how we write down the linear differential equation in general method, general way of writing down it, where y is a function of x, and you see the order goes on decreasing. So order क्या होता है? जैसे कि in this case, this general equation, the order of differential equation here, order is nth order, and p1 से लेके p1, p2, p3 करते करते pn, these are either constants, जैसे पहले यूज करते थे constants, or function of x only. And on the right hand side, x is a function of x. Right. So when we solve this, start solving this, first and foremost we have to understand what is the complete solution. Complete solution, how do we denote it? So how do we write the complete solution of linear differential equation of higher order? ये जानना जरूरी है. कैसे लिखते हैं complete solution guys? थोड़ा तो complete solution will be y is equal to what? Anyone? Any idea? Subhashri, any idea? So we write down something like this: complementary function plus particular integral. Now, Punisa, Subhashri, exam of class hai group. They have given you the exam. See, this is the question. 5 marks. This is the question again, and you will always get questions like this if they have not taught you. But I am afraid they ask you these questions. फिर आपको यहाँ पे particular solution of this. They will ask. They have asked, and they will continue to ask. So ये तो रहेगा guys, ऐसा questions आपके लिए रहेगा for sure. So I don't know whether they have taught or not, but yeah, this thing will be there in the examination. This is in your syllabus also. Linear differential equation of higher order. चलो ठीक है, जब पढ़ाया नहीं तो मैं पढ़ा देता हूँ आपको. So complementary function plus particular integral. अब यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए, in order to solve this entire question, अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग को दोनों डिटरमाइन करना पड़ेगा. we'll have to determine both complementary function and particular integral. Without this we won't be without this two, we won't be having the complete solution in terms of y. यानी कि हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा. complementary function कैसे निकालेंगे, particular, दोनों का मेथड अलग अलग है, and that is why it makes this particular topic becomes a bit more complex to solve. तो याद रखना, एक चीज बोलता हूं मैं आप लोगों को, if RHS of right hand side of this equation को मैं 1 लिख देता हूं. If RHS of equation 1 is 0, यानी कि that is x is equal to 0, then
solution is y is equal to complementary function only. Try to understand. लेकिन अगर if RS if RHS यानी कि right hand side of equation 1 is not equal to 0, then y is equal to both complementary function and particular integral. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल if I show you one of the ASCII क्वेश्चन है, जस्ट तो अगर मैं ASCII का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे दिस वन. So here if you see this particular question, this particular thing is having x equal to 0 on the right hand side. So this will only have complementary function only as a solution. But when you go downstairs and go to the further part of the question, and they will ask you to solve this particular differential equation, on the right hand side it is a function of x. So this will have both complementary function and particular integral. This question should have been for around 8 marks. They have given for 5 marks there. So how to solve this? अब बात करते हैं धीरे धीरे एक एक चीज के बारे में. Let's talk about one things at a time. So जैसे कि for example, if the given differential equation is of this form, in that case we denote d by dx as an operator d. इसको ये एक ऑपरेटर है guys. This is an operator d. So क्या हो जाएगा? dy by dx will be written as dy. Same way, if I write down d2y by dx square, this will be written as d square y. Or if we write down d cube y, d3y by dx3, तो यहाँ पे आ जाएगा d3y. This is the way we write down this. ठीक है. So वो जनरल इक्वेशन जो है, ध्यान से सुनना guys. जनरल इक्वेशन जो है हमारा, which I write down something like this, dny by dx to the power n plus d1 dn minus y dx to the power n minus 1 plus p2 dn minus 2y plus dx to the power n minus 2. करते करते हमारे पास pn of y आ जाएगा is equal to x. ऐसा है. So d, this is the d operator, differential operator. So I'll write down this as dn plus p1 dn minus 1. y बाद में लिखूंगा, देखो y को कॉमन ले लूंगा, प्लस p2 dn to the power n minus 2 प्लस करते 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 लास्ट में pn, इसमें हम लोग y कॉमन ले लेंगे. Am I clear all of you? So all of you, Mridul Pawan, is it clear to you? If I am audible, you can respond. तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा. Here we have something like this. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका क्या होता है. दिस इज इन दिस एंटायर थिंग कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ डी डिफरेंशियल ऑपरेटर इनटू वाई इज इक्वल टू एक्स. अब ये पूरा का सॉल्यूशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. दिस एंटायर पार्ट फॉर्म्स फंक्शन ऑफ डी. सो व्हेनेवर वी फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस विल बी डन by equating function of d is equal to 0. function of d को equal to 0 करेंगे एक बार. तो function of d को equate करेंगे इसमें, तो हम लोग को इससे we will get roots of this equation. So we will get the value of d. ठीक है. तो d1 d2 d3, तो roots of this equation d1 d2 d3 जितना होगा, अगर n ऑर्डर का है तो हम लोग को n रूट्स मिलेगा. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये स्क्वायर है, तो हम लोग को 2 ही रूट मिलेगा. सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन निकालो. सो वी विल फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशंस लाइक दिस, एंड देन यूजिंग द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वी विल फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये जनरल फॉर्म से समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट लेट अस टॉक अबाउट दिस. तो वी विल हैव जस्ट तो हम लोग ये कर देते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं इसको. एफ डी इक्वल टू 0 कर देते हैं जब हम. तो लेट अस सी फर्स्ट. चलो क्वेश्चन में आपको देख रहे हैं.
So the question goes something like this: d2y by dx square plus 2 dy by dx minus 3y is equal to 0. इसको बोला सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको पूरा भी सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आपको कैसे करना। सो दिस थिंग यू सी, तो यहाँ पे क्या है कि दिस कैन बी रिटन एज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आपका ऑपरेटर है। इसका ये जो है P है, ये P1 है या P2 है, ऐसे करके है बस। तो हमारे पास दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। कर सकते हैं गैस, बोला था ऑल ऑफ यू, all of you, we can do this obviously. So we have represented this operator as d. So since it is d2y by dx square, I'll mention it as d square. This is d and यहाँ पे y as it is. तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने जाएंगे तो फर्स्ट स्टेप 1 जब करेंगे, पे अटेंशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप 1 विल इक्वेट d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3, मतलब क्या हुआ, is equal to 0. It means we are doing what we are doing here. We are function of d is equal to 0 कर रहे हैं। इसको हम लोग auxiliary equation बोलते हैं। We name it as auxiliary equation। तो यहाँ से हम लोग रूट्स निकालेंगे। कैसे रूट्स निकालेंगे? तो d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 2d माइनस 3 is equal to 0, ऐसे लिख सकते हैं। So we'll break it down into sum of roots and product of roots, ठीक है। सॉरी 3d minus d आएगा, 3d minus d। So 3d minus d, 2d, so 3 into minus 1 minus 3. So I'll have d square to d common later. Let us take the d common. So if I take d common, so I'll have d plus 3, then I'll have minus 1 common, then I'll have d plus 3 again. So we'll have d minus 1, d plus 3 is equal to 0. From here, I'll have d1 is equal to 1 and d2 is equal to minus 3. Am I clear all of you? If so, we have quadratic equation, second order differential equation. So we have quadratic equation of auxiliary equation is quadratic in nature. So we'll have two roots. So using these roots only, we'll try to find out the complementary functions. So there are certain rules. The rules to find the complementary function. Very very important. Very very important. I'm telling you, this is one of the extremely important topic for your end semester as well as GATE or for any PSU examination as recruitment examinations taking place across India which are hiring mechanical engineers. तो ये आएगा ही आएगा, रूल्स ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें रूल्स फाइंड करने के लिए अलग अलग केसेस है। केस 1, आई डोंट अंडरस्टैंड। सो केस 1 है, द केस 1 गोज लाइक रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स जब रियल हो और डिफरेंट हो, जैसे कि पहला केस है, दीज आर रियल नंबर्स 1 माइनस 3, रियल है और डिफरेंट भी है, एक 1 है एक माइनस 3। So whenever we will have roots which are real and different, I will have the complementary function written as complementary function is equal to c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x plus ऐसे करते करते जाएगा जहां तक भी जितना रूट्स है। So m, this m जो है, these are the values of roots of the auxiliary equation. This m, m1, m2, m3, all these are roots of the auxiliary equation. कौन सा? fd is equal to 0, जहाँ से हम लोगों ने ये roots निकाला है। So वहाँ पे m1, m2, m3 ये सब का वैल्यू है। These are the roots basically. So roots को यूज करते हुए we will have this. अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखें आप, try to understand. So whenever we solve the differential equation of first order dy by dx plus py
इज इक्वल टू क्यू, तो हम लोग को y का वैल्यू जो आया उसमें कुछ भी फंक्शन ऑफ x आया होगा प्लस c, एक ही कांस्टेंट आया था गाइस। देयर इज वन कांस्टेंट फॉर वन ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सो अगर आपका ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन n है तो n टाइम्स आपका n कांस्टेंट्स आएगा, क्लियर टेंशन अभी। और अगर ऐसे आपका कांस्टेंट्स यानी कि दो है, यानी कि अगर ऑर्डर टू है तो दो ही कांस्टेंट्स आएगा, c1 c2। जैसे कि पिछला क्लास में, पिछला क्वेश्चन में, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन we found out the roots as 1 and minus 3. So I will have m1 is equal to 1 and m2 is equal to minus 3 in the last question. So जब दो रूट्स आया, ये दोनों रूट्स रियल है देखो, और अलग अलग भी है, रूट्स आर रियल and different. In that case, complementary function can be written as c1 e to the power m1 is 1x plus c2 e to the power minus 3x. Am I clear, all of you? All of you guys, is it clear so far? Is it Pawan clear, sir? Very very important, huh? This is extremely important. So complementary function is this. This is how we write down. अगर मैं इसके ऊपर और क्वेश्चंस करा दूं, if I have solved more questions on this, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चंस कर लो, एग्जांपल तो सॉल्व दिया हुआ है, सॉल्व मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे क्वेश्चन आया है आपको, और उसके हिसाब से आप समझना कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है और इसी तरह का क्वेश्चन तो गेट में भी पूछा जाता है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus dy by dx minus 6y is equal to 0। इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन अभी नहीं लिखूंगा। एंड दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन गेट 2010 फॉर 2 मार्क्स। इसी तरह का क्वेश्चन आजकल भी पूछा जाता है, देयर इज नॉट मच चेंजेस, कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस है नहीं। तो व्हेन यू पेड अटेंशन यू सॉ अच्छा दिस इज ऑफ हायर ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। फिर आपने देखा कि अच्छा इसमें y और dy by dx, y and its own derivative are not multiplied together. डिग्री इज 1 फॉर ऑल टर्म, सारे टर्म का डिग्री 1 है, देखो 1, इसका भी 1, इसका भी 1, y स्क्वायर नहीं है, तो डिग्री इज 1 फॉर ऑल टर्म्स, डिग्री 1 होना जरूरी है लीनियर होने। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो सेकंड ऑर्डर है, फर्स्ट ये है, डेफिनेटली दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, पता करना भी जरूरी है। So we can write down this equation as d square y plus dy minus 6y is equal to 0. So यह क्वेश्चन ऐसा होगा फिर d square plus d minus 6 into y is equal to 0. This becomes fd and this fd must be equated to 0, which implies d square plus d minus 6 must be equal to 0. So we will have to find out the roots. So I'll write down something like this, d square, तो ये आ जाएगा प्लस 3d माइनस 2d माइनस 6 इक्वल टू 0। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? सम ऑफ रूट्स 1 आया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 6 आया, तो एक 3 एक माइनस 2, दो रूट्स आएगा, 3 एंड माइनस 2 आएगा। सो वी विल हैव d माइनस 3 या 2 आएगा जो भी, तो d प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आई विल हैव d माइनस 2, we'll have d plus 3 is equal to 0. From here we will have d1 is equal to, यानी कि solution for d will be equal to 2 and minus 3. Therefore क्या हो जाएगा हमारे पास, m1 is equal to 2, m2 is equal to minus 3. These roots are what? These roots are real and they are different in value, magnitude अलग अलग है। So roots real और different होने के वजह से we can write down the complementary function as c1 e to the power twice x plus m1x plus c2 e to the power minus thrice x. Am I clear all of you? If there is any doubt, वो डाउट है तो बताओ। ये क्वेश्चन का this entire thing was given in one of the options
ये ऑप्शन आप करेक्ट करके आओगे तो आपको गेट में 2 मार्क्स मिल जाएगा. दिस इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ गेट, नथिंग मच. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अभी तक एक रूल पढ़ लिया हम लोगों ने. पहला रूल पढ़ा, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. अब रूट्स आर रियल हो जाए और इक्वल हो जाए, हो सकता है भाई. द रूट्स आर रियल एंड इक्वल अगर हो गया तब क्या करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट्स, तो हमारे पास यहाँ पे केस 2 या रूल 2, सॉरी, आई हैव रूल नंबर 2 as roots are real and equal. I am asking you, all of you again, pay attention. If the order of differential equation is 3, मान लो d3y by dx cube ऐसे है. अगर डिफरेंशियल या ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ऑर्डर इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट्स के माना है बोला गया. हाउ मेनी नंबर ऑफ कांस्टेंट्स शुड बी देयर गाइस इन द फाइनल सॉल्यूशन? If order is 3, the number of arbitrary constants in the final equation कितना होना चाहिए? 3. 3. Obviously, be confident यार. अभी थोड़ा देर पहले बताया मैंने. This was second order. So we had two constants, C1 and C2 only. So whatever is the order of differential equation, that many number of arbitrary constants we will have in the final solution as well. So make sure you understand this completely, put it in your mind. If somewhere down the line, if you are having number of arbitrary constants less than the order of the differential equation, it means you have committed some mistakes somewhere in the question, somewhere while solving the question. Am I clear to all of you? ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे करते हैं, अगर हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को f of d into y is equal to 0 ऐसे लिख सकते हैं. दिस f of d कैन बी रिटन एज dn plus e1 d to the power n minus 1 plus e2 d to the power n minus 2 प्लस करते करते en ऐसे गया, और ये y तो y है एज इट इज इक्वल टू 0. तो dn into y, dn into y मतलब क्या, d to the power n y by dxn, d to the power n minus 1 y is equal to d to the power n minus 1 y by dx to the power n minus 1. इस तरह से हम लोग लिखते जाए. सो हम लोग को करना क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए वी विल हैव टू फाइंड आउट एफ टी मस्ट बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से रूट्स आएगा हमारा. व्हाइल सॉल्विंग दिस वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स. तो अगर हम लोग का रूट्स ऐसे आया कि वैल्यू ऑफ डी ऐसे आ गया एम, पे अटेंशन गाइस ना, इफ द रूट्स कम आउट टू बी, मान लो हमारा रूट्स है तो m, m1, m2, m3 ऐसे करते करते m1 आया, और पता चला कि पहला दो रूट सेम है. नाउ m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m आ गया. तो दो रूट्स अगर सेम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई हैव d minus 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो रूट्स विल बी 2 and 2. दो रूट्स आएगा बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो दो 2 and 2 are the two roots, but those two roots are real but also equal. Real and equal roots अगर होता है तो these roots are equal. These first two roots are equal, बाकी का अलग अलग. ठीक है, तब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब जनरली जैसे पहले लिखते थे, अगर लिखें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तब हम लोग लिखते थे c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus c3 e to the power m3x, करते 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 cn e to the power mnx ऐसे लिखते हैं. लेकिन ये पहला दो रूट तो सेम है गाइस. c1 e to the power mx because m1 is also m plus c2 e to the power mx, m2 is also m. I have written down like this. So c3 e to the power m3x प्लस करते करते हमारे पास cn e to the power mnx ऐसे है. अब देखो तो ये और ये कॉमन नहीं ले लिया, e to the power mx कर लिया, बच गया हमारे पास c1 plus c2 plus c3 e to the power m3x plus जो भी whatever it is. Now one constant with another constant, 6 plus 2 8 ही होगा. It will form another constant guys, c, मान लिया c, one complete
another constant c1 plus c2 is equal to c. So mx plus c3 e to the power m3x plus cn e to the power mnx. लेकिन अगर आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखोगे दिस वन, तो दिस इज insufficient, दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर यू. क्यों सफिशिएंट एंड इनसफिशिएंट एंड रॉन्ग हो जाएगा? कैसे देखो तो. मैंने बताया ऑर्डर अगर डी एन वाई बाय डी एक्स एन यानी कि एन एफ ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स शुड बी एन होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे 3 4 5 ऐसे करते एन तक है. तो पहले कितना था जब लिख रहे थे तो 1 2 3 तो एन आ रहा था 1 से लेके एन तक एन. बट नाउ दिस टू आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैज बीन कंप्रेस्ड टू फॉर्म अनदर वन. तो अभी एक कम हो गया ना गाइस, ये दोनों मिलके एक हो गया. सो दिस इज 1, नाउ दिस विल बिकम 2. ऐसे करते करते हम लोग को लास्ट में जाकर कितना मिलेगा आर्बिट्री कांस्टेंट्स n-1. बट ये तो गलत है. हम लोग का एन सॉल्यूशन में जितना ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्री कांस्टेंट्स होना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई इसका एक डेरिवेशन है जो मैं अभी डेरिवेशन अभी करके नहीं दिखाऊंगा. दैट डेरिवेशन आई हैव डन ऑलरेडी इन द नोट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू गाइस. If you have watched it, if you have gone through the notes, then it is okay. If you have not gone through the notes, then problem तो है. मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स कहाँ है. यहाँ पे ये जो नोट्स आपको जो दिखा रहा हूँ जो भेजा है, probably if you guys have gone through this or not, just this. आपको एक बार so this is the notes. तो नोट्स तो मैंने भेज दिया था आप लोगों को. अगर आप पढ़ते हो तो ठीक, नहीं पढ़ते हो तो अलग बात है. So these are the real and different. Then we have provided number of arbitrary constants n-1. देखो अभी जो पढ़ा रहा हूँ वही चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ. दिस इज नॉट आवर कंप्लीट सॉल्यूशन. फिर क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेशन किया मैंने. डेरिवेशन करने के बाद हम लोग को पता चला कि फाइनल सॉल्यूशन लिखने का तरीका ऐसे है, जो मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि फाइनल सॉल्यूशन लिखा कैसे जाए. So if I am supplying something, make sure you go through that. Kindly respect that. कि अच्छा somebody is somewhere out of nowhere, he has come out to help us in a situation where we guys are not being taught sufficiently in the college, and we are also unaware of the facts how to solve these questions. जब मैं कुछ आपको फॉरवर्ड करता हूँ ग्रुप में, तो काइंडली मेक श्योर यू गाइज आर एक्टिव एंड गो थ्रू. तो ये गलत हो जाएगा. तो हाउ डू वी राइट डाउन द करेक्ट सी एफ? तो करेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका बता देता हूँ. दैट विल बी सी एफ विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिखेंगे c1x प्लस c2 e टू द पावर mx. तो दो हो गया था ना, m1 इज इक्वल टू दिस m जो है दिस इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू m c1 c2. अब c3 e टू द पावर m3x प्लस करते करते ये चला जाएगा c1 cn e टू द पावर mnx. तो 1 2 3 n arbitrary constants, and we write down this. The way we write down the equation, we write down like this. ये आपको याद रखना पड़ेगा. This thing you will have to memorize by practicing. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए, उतना ज्यादा अच्छा. कसम. Am I clear all of you? Any doubt anyone? c1x বা c2 তুমি g2 লিখা, c1 প্লাস c2x করে দিয়া কথা একে, বা c1x প্লাস c2 এনেকে পড়া. c1x প্লাস c2x নহয় তেনেকে, c1x প্লাস c2 বা c1 প্লাস c2x দুটাৰ মাজত কোনো এটা তোমাক কেলে লাগিছে c2x হ'ব পাৰে? I'll show you, huh? I'll show you one thing. One question. Just a minute. So linear differential equation of higher order. चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं. I'll show you one of the questions guys, how to solve it. शायद notes में भी है क्या? Let us solve this question guys. Let us एक क्वेश्चन करा देते हैं जो कि गेट में आया हुआ है, 2 मार्क्स का है, और ये आपका यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है. सो इट इज गिवन दैट
given that y double dash मतलब क्या, d2y by dx स्क्वायर प्लस 2y dash मतलब dy by dx प्लस y is equal to 0 कॉमा y 0 is equal to 0 मतलब क्या x के वैल्यू 0 पे y का वैल्यू भी 0 एंड y at x equal to 1 is equal to 0 again। तो पूछा है what is y at x equal to 0.5, ये पूछा है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, गेट में भी पूछा है, यूनिवर्सिटी में भी आया हुआ। सो यहाँ देखो, सो ये क्वेश्चन जो है दिस थिंग आई कैन राइट डाउन समथिंग लाइक दिस, जैसे आप देखना द वे यू परसीव द क्वेश्चन, write down in the way which you find comfortable to interpret the question. So write down like this: d2y by dx square 2 dy by dx plus 1 into y is equal to 0. So I can write down like this: d square plus 2d plus 1 into y is equal to 0. So I'll have what? D plus 2, fd का value 0 कर दो. So first write down from here fd is equal to 0, which means d square plus 2d plus 1 should be equal to 0. So I'll have d plus 2 का whole square is equal to 0. From here I get d is equal to minus 2 minus 2. Am I clear all of it? Okay. So what we have here, the roots are what? Real, but these are equal roots. So here we have m1 is equal to m2 is equal to m, which is equal to minus 2. यही value हमारे पास. So I can write down complementary function is equal to c1x plus c2 e to the power minus twice x. mx हो जाएगा m को जगह 2 आ गया. So we have write down this is of the form c1x plus c2 into e to the power minus mx. या derivation पढ़ाई एक करने में यानी कि लिखिए ऐसे. That derivation the proof is given to you in the notes. If you don't understand from the notes, so you can ask me. I'll show you the derivation. Not a problem. So यहाँ पे ये है बस. अगर आप इसको देखो, अगर मैं आपको आप बोलोगे कि सर हाँ थोड़ा सा करके दिखा दो एक बार कैसे हुआ, मान लिया कि इसको आपको समझा देता हूँ। मान लिया कि y इज इक्वल टू c1x प्लस c2 e to the power minus twice x है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं c1x into e to the power minus twice x plus c2 e to the power minus twice x। Am I clear all of it? ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखो ये सॉल्यूशन से मैं आपको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन तक ले जाता हूँ। देखो क्या आएगा आंसर, देखो कैसे होगा। सो यहाँ पे आई हैव, अगर हम लोग दो आर्बिट्री कांस्टेंट में दो टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट मींस dy by dx करने दो तो c1 एक कॉमन रहेगा, x दिस एंड दिस आर इन द फॉर्म ऑफ uv, तो uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है इज इक्वल टू u डॉट v प्लस uv डॉट, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड फॉर्म में, सो वी डू द डिफरेंशिएशन समथिंग लाइक दिस। सो x का डिफरेंशिएशन एज इट इज तो v रह जाएगा, u का डिफरेंशिएशन तो x का डिफरेंशिएशन 1 v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन e to the power minus twice x into minus 2 ये आ गया, प्लस c2 e to the power minus twice x into minus 2 ऐसे आ रहा है। So I have dy by dx is equal to c1 e to the power minus twice x minus twice x, देखो minus 2 इधर आ जाएगा e to the power minus twice x ऐसे आया, प्लस इस प्लस में फिर माइनस साइन माइनस ये minus 2 c2 e to the power minus twice x ऐसे आएगा something like this. So I'll have c1 e to the power minus twice x minus 2 c1 into x to the power minus twice x minus 2 c2 e to the power minus twice x ऐसे आ रहेगा। Am I clear all of you? ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग वापस से d2y by dx स्क्वायर करते हैं, if I double differentiate and rearrange it, I will get the original differential equation। यानी कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन को अगर फिर से डबल डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस से डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यू जस्ट ट्राई, मैं आपको खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको हेल्प कर रहा हूँ। अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रॉडली कंसेप्ट में समझाऊँ तो मैं आपको dy by dx का मीनिंग समझाते हुए आई मेक यू लर्न दिस।
बट यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे सॉल्व किए तो आपको यहाँ पे दो रूट्स मिला -2 दिस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो आई विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समथिंग लाइक दिस। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा c1x प्लस c2 -2x ऐसे लिखा, और हम लोग को ये y है, सिर्फ y सॉल्यूशन ही है, लेकिन पूरा फुल सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू x का वैल्यू 0 पे y का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 1 पे y का वैल्यू फिर से 0 है, तो y का x का वैल्यू y x का वैल्यू 0.5 पे y का वैल्यू क्या होगा ये पूछा आपसे। तो ये आपको दो कंडीशंस क्यों दिया हुआ है, दे हैव गिवन यू टू कंडीशंस बिकॉज देयर आर टू आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, सो टू अननोन्स को जानने के लिए दो इक्वेशन, मिनिमम टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड एटलीस्ट। So we have y is equal to 0. Now y at x equal to 0 is 0. So y का वैल्यू 0 पुट किया यहाँ से लिखा, और x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो पहला 0 प्लस c2 e to the power minus twice x e to the power 0. So e to the power 0 is 1, c2 यहाँ से क्या है, c2 is equal to 0, c2 0 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास y is equal to, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है, अब y x इक्वल टू 1 पे e टू द पावर 0, y x इक्वल टू 1 पे भी 0 है, देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ एट x इक्वल टू 1 y इज 0, सो आई विल हैव, ध्यान से सुनना, सो आई विल हैव c1 c1x, तो c1x x का वैल्यू पुट कर देते हैं, c1x तो x का वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1, c2 तो 0 निकल जाए, c2 नहीं भी लिखने से चलेगा गैस, इनटू e टू द पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा गैस, c1 का वैल्यू भी 0 आएगा, देखो e टू द पावर 2, तो ये इसको हम c1 इंटू 1/e टू द पावर 2 ऐसे लिखेंगे 0, तो c1 इज ऑल्सो 0, तो y का वैल्यू 0 ही आ रहा है, देखो c1 भी 0, c1 भी 0, c2 भी 0, 0 प्लस 0 0, तो y का वैल्यू कहीं पे भी 0 ही आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू x इक्वल टू 0.5 पे भी 0 ही आ रहा है। दिस इज योर आंसर, ये गेट में भी पूछा था आप लोगों से। जैसे कि एक और क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि गेट आपका आस्तु में, दिस इज आस्तु का क्वेश्चन पेपर, सो यहाँ पे आप लोगों को लेट अस सॉल्व दिस, यहाँ पे ये, सो जस्ट दिस, so we will have, I'm just taking a screenshot, copy and paste it and show you how to solve this. Is the screen visible, all of you? So Vasri and Deepa, visible? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3 पे क्या है, ठीक है भाई, x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, तो आपको x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3 दिया है, यानी कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू मिलेगा। They have given to solve this, so they have given to you the question as d2y by dx square plus dy by dx minus twice y is equal to 0. So I'll write down this as d square plus d minus 2 y is equal to 0. So यहाँ से क्या आ जाएगा, fd जो है is equal to d square plus d minus 2 is equal to, क्या आ जाएगा guys यहाँ से, I can write down d square plus 2d minus d minus 2 is equal to 0. So I'll have d plus 2 minus 1, d plus 2 is equal to 0. So I'll have d minus 1, d plus 2 is equal to 0. So I'm just finding out the roots. यहाँ से roots मेरे को मिल गया, एक root मिला, sorry, d is equal to 1 और दूसरा मिला -2. It means m1 is equal to 1, m2 is equal to -2. This is the condition of what? Roots are real and different. Am I clear all of you so far? So roots are real and different to the পাইগুলো, then y solution is, the solution is only complementary function because here right hand side पे जो x का फंक्शन होना चाहिए वो 0 है,
मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल पे निकालना पड़ता है, तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से ही सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो y which is equal to complementary function, I write down c1 e to the power m1 is 1, so 1 into x is x plus c2 m2 is twice x, something like this. Am I clear? ठीक है, तो this is a general solution in terms of arbitrary constants. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग को ये वैल्यू पुट करना पड़ेगा at x equal to 0, y is equal to 3. So we will have at x equal to 0, y is equal to 3. I'll put this question here. Therefore, y का वैल्यू 3 पुट किया, y का वैल्यू 3 पुट किया, 3 is equal to c1, I don't know, x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो e to the power 0 plus c2 e to the power 0. Am I clear all of you? Any doubt anyone? तो यहाँ से हम लोग c1 plus c2 is equal to 3. So I can write down c1 is equal to 3 minus c2. कुछ इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो आई विल राइट डाउन c1 is equal to 3 minus c2. एक ही निकला because they have given to you only one condition. Have they, if they have given to you two conditions, then we could have found the complete solution by determining c1 and c2. But एक ही है भाई, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन बनेगा, एक ही इक्वेशन बनेगा तो हम लोग का कॉन्स्टेंट्स के बीच का रिलेशन है। तो y इज इक्वल टू क्या था, c1 e to the power c1 e to the power x plus c2 e to the power minus twice x, ऐसे था। c1 की जगह 3 minus c2 लिखो, 3 minus c2 e to the power x plus c2 e to the power minus twice x, समझे? तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 3 e to the power x minus c2 e to the power x plus c2 e to the power minus twice x, इसी भी फॉर्म में। तो हमारे पास ये c2 कॉमन ले लेंगे, तो e to the power x minus e to the power minus twice x, तो हमारे पास वेरी क्लोज टू अस ये हो जाएगा बस। एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो अगर आप c1 इंटू c1 प्लस c2 ऐसे लिख दिया, तो अगर आप c2 इज इक्वल टू 3 माइनस c1 लिख दो तभी भी चलेगा वैसे। 3 माइनस c1 कर दिया, तो यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर x, और c2 की जगह हम लोगों ने 3 माइनस c1 e टू द पावर माइनस ट्वाइस x, ये तो किया उन्होंने, c1 e टू द पावर x 3 minus c1 e to the power minus twice x, ये option C. This is how you solve higher differential equation case. Am I clear all of you? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एक क्विक समरी दिखा देता हूँ, क्विक समरी जो अभी तक पढ़ रखा है हम लोगों ने। क्विक समरी में हमारे पास क्या था कि पहला हम लोगों ने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर का करेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग डाउन द LDE जनरल फॉर्म, तो आई हैड dy by dx plus py is equal to q. So in this case we will have p and q as functions of x or constants. So solution is, तो पहले हम लोग को इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और सॉल्यूशन जो होगा विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू, या फिर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर integration of this into dx plus c. This is the first one, linear differential equation of first order. Number 2, linear differential equation of higher order. Generally second order तक ही आएगा आपको higher order. तो higher order में हम लोग लिखने का तरीका क्या होता है? We write down dny by dxn plus p1 dn to the power minus y dxn minus 1 plus p2 dn minus 2y plus dxn minus 2, ऐसे से करते हैं, ठीक है। तो p and y is equal to x आएगा guys, ठीक है। तो where p1 p2 p3 pn ये कांस्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x होगा ओनली। अगर ये dx by dy होता तो फंक्शन ऑफ y होता है, एंड ऑन द राइट हैंड साइड x is equal to the function of x only. तो ऐसे का कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी कि y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पी आई। बट
if RHS यानी कि राइट हैंड साइड यानी कि x is equal to 0, RHS is 0, therefore पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बिकम 0. ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 कैसे हो जाएगा. पर्टिकुलर इंटीग्रल 0, therefore solution y will only be restricted to कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका क्या है? रूल्स ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. रूल्स ऑफ फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या क्या है हमारे पास? सो वी हैव नंबर 1, तो हम लोग पहला वाला जितना भी एफ डी यानी कि ऑपरेटर को डी ऑपरेटर में कन्वर्ट करेंगे. सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू डी ऑपरेटर यानी कि डी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स. सो इफ आई राइट डाउन डी वाई इट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स. इफ आई राइट डाउन डी टू वाई इट विल बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. सो एफ डी इज इक्वल टू 0 करेंगे. तो यहाँ से हम लोग को एफ डी इज इक्वल टू 0 करने से हम लोग को रूट्स मिल जाएगा. तो रूट्स विल बी रिटन एज डी इज इक्वल टू d1 d2 d3 ऐसे करते करते जाएंगे यानी कि या फिर m1 m2 m3. तो पहला दो रूल आपको समझा देता हूँ. रूल नंबर 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. रियल और डिफरेंट अगर होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन एज c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x. अगर रूल नंबर 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो जाता है बस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1x plus c2 e to the power mx यानी कि m1 is equal to m2 is equal to x. अगर am I clear all of you? All of you guys so far? इसके बाद रूल नंबर 3 आएगा कि रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नॉट रियल, दीज आर इमेजिनरी. इमेजिनरी रूट्स आएगा तब क्या करोगे? इमेजिनरी रूट्स आने से आपको एक पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होगा जैसे अल्फा प्लस बीटा. तो रियल इमेजिनरी रूट्स कैसे होता है? अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा. तब क्या करोगे? इसका भी क्वेश्चन आप लोग को है एंड सेमेस्टर में. दिस इज हाउ वी सॉल्व सम क्वेश्चंस. ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑफ हायर ऑर्डर का पहला पार्ट. एम आई क्लियर ऑल ऑफ यू? Okay. So this will be enough for today.